Good morning, students. Today we discuss converse basic proportionality theorem. In previous class, we already discussed that the BPT theorem. So, what is the BPT theorem? Just revise it. If a triangle ABC is given and a line which is parallel to BC intersect AB at D and AC at E. Okay. Suppose triangle ABC is given and line D which is parallel to BC intersect AB at D and AC at E. Then AD upon DB is equal to AE upon EC. So this is basic proportionality theorem. मतलब ट्रायंगल दिया है और एक लाइन ट्रायंगल के किसी साइड को पैरेलल है जो दो साइड को इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो ये दो साइड इस रेशियो में डिवाइड होंगे. दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. नाउ वी टेक कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. So what is the basic converse basic proportionality theorem? If a line divides any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, मतलब क्या हुआ कि suppose triangle is given and a line which divides these two sides, this suppose this is ABC triangle, then this line if divides AB and AC in the same ratio, that is it is given AD upon DB is equal to AE upon EC. Then the line is parallel to the third side. Then this line is parallel to BC. Then so we have to prove that D is parallel to BC. Okay. So what is converse BPT theorem? In a triangle, if a line divide these two sides in the same ratio, AD upon DB is equal to AE upon AC, then we have to prove D parallel to BC. BPT में ये दो लाइन पैरेलल दी होती है, तो हमको रेशियो प्रूव करना है. अब इसमें रेशियो इक्वल दिया है, हमें प्रूव करना है लाइन्स आर पैरेलल. ओके, सो सी द प्रूफ नाउ. So first you write here given. First you write given. What is given in the theorem? So first stage is given. So given is in triangle ABC. So see the triangle. So triangle is given and a line which intersect these two lines. D. Okay. So what is given? Given is in triangle ABC. D is a line intersect AB at D and AC at E such that हमको क्या दिया है, लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो. तो ऐसे डिवाइड कर रहा है कि उनका जो रेशियो है सेम है, दैट इज AD upon DB is equal to AE upon EC. So it is given. Okay. So we write this equation as 1. So what is given? In triangle ABC, D is the line which intersect AB at D and AC at E and AD upon DB. AD upon DB is equal to AE upon EC.
It is given. Okay. Now to prove, what we have to prove, हमें क्या प्रूव करना है? So prove that DE parallel to BC. तो हमें ये लाइन इसको पैरेलल है. Simple, we have to prove that. Okay. Now see, here also we use one construction. Now this theorem is based on contradiction theorem. Okay. So what is contradiction theorem? इस theorem में क्या होता है कि हमें कुछ सपोज करना पड़ता है कि ऐसा है और उसको हम गलत दिखाना है. ओके. गलत दिखाने के बाद हमारा जो सपोजिशन होगा वो रॉन्ग होगा और सही वही होगा, उसका जो उल्टा होगा. ओके. तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे. सो व्हाट इज दैट सपोज कि अगर हमें अभी प्रूव करना है कि D is parallel to BC. D is parallel to BC. हम सपोज करेंगे कि D is not parallel to BC. Okay. Now to suppose that, so write here, suppose DE is not parallel to BC. ओके. हमने सपोज किया कि D is not parallel to BC. Then draw a line through B such that this line, that is suppose BM parallel to D. तो हमें क्या करना है? ध्यान से देखो. हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है? सपोज किया कि ये जो लाइन है D लाइन BC को पैरेलल नहीं है. तो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया कि B थ्रू B एक ऐसी लाइन ड्रा करो जो D को पैरेलल है. तो मैंने इस तरह लाइन ड्रा किया. आप D से भी कर सकते हैं, C से भी कर सकते हैं. ओके. सो इस तरह जॉइंट लाइन ड्रा करो और उसको जॉइन कर दो. तो इसको नाम दो सपोज M. ओके. तो हमने सपोज किया कि D is not parallel to BC. तो हमने B से एक लाइन ड्रा किया BM which is parallel to D. ओके. सो D is parallel to BM. आप C से भी लाइन ड्रा कर सकते हैं इस तरह. तो that is our construction. Now next part is our proof. So we see the proof. Now see the proof. We know that in triangle ABM, observe triangle ABM. In triangle ABM, see ABM, this is big triangle. In this triangle we know D is parallel to BM. We have constructed. Okay. So ABM triangle में D लाइन BM को पैरेलल है. तो आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में देखा है कि कोई भी ट्रायंगल में, सपोज ये ट्रायंगल है, ये लाइन अगर इसको पैरेलल है तो दिस डिवाइड इन द सेम रेशियो. तो यहाँ पे भी ऐसा है कि ABM ये ट्रायंगल है, इसमें DBM को पैरेलल है तो ये रेशियो भी इक्वल होगा. दैट इज AD अपॉन DB, AE अपॉन EM. ओके. सो AD upon DB is equal to AE upon EM. This is by DPT theorem.
ओके, दिस इज बाय बीपीटी थ्योरम, क्योंकि इस ट्रायंगल में एबीएम ट्रायंगल में डी लाइन बीएम को पैरेलल है, तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईएम। ठीक है, सो दिस इज नंबर 2। नाउ सी ऑब्जर्व नंबर 1 एंड नंबर 2 इक्वेशन। नंबर 1 और नंबर 2 को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि उसकी एक साइड इक्वल है, एडी अपॉन डीबी, यहां पे भी एडी अपॉन डीबी है, तो ऑटोमेटिक दूसरी साइड इक्वल हो गई। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या मिला, दैट इज AE upon EC is equal to AE upon EM. Okay, so we get this equation AE upon EC is equal to AE upon EM. So here AE cancel, so from this equation we get EC is equal to EM. EC is equal to EM. Okay, now see EC, where it is? EC is this part and EM is this part, and both parts are equal. EC this part and EM this part equal. ये क्या पॉसिबल है कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो सकता है? यहाँ पे फिगर में देखो, दिस पार्ट और दिस पार्ट, दिस पार्ट और दिस पार्ट इज, can it be equal? No, so it is impossible. So right here this is not possible, this is not possible. तो ये पॉसिबल कब होगा? when EC is equal to EM. ओके, तो ये पॉसिबल कब होगा? when M पॉइंट कहां पे कॉन्साइड होगा? C पे। ये पॉसिबल कब होगा? जब M पॉइंट C पर कॉन्साइड होगा। सो राइट हियर इट इज पॉसिबल व्हेन M पॉइंट coincide at point C. So our supposition is wrong. क्योंकि हमने ये क्यों आया ऐसा? क्योंकि हमने सपोज किया डी लाइन बीसी को पैरेलल नहीं है, इसको पैरेलल ले लिया हूं। अगर हमने सपोज नहीं किया होता तो क्या ये पॉसिबल होता? यस, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। Okay, so our supposition is wrong. Hence अब देखो यहां अगर C पर आ गया तो ये लाइन कौन सी हो गई? BC हो गई। सो BC किसको पैरेलल हो गई? D को। सो B is parallel to BC. That is our proof. Hence proof. Okay, so this is the theorem. तो इस थ्योरम में हमने क्या किया? सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल में आपको ये लाइन, दो लाइन को इंटरसेक्ट हो रही और AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन EC, क्या आपको दिया है और हमको प्रूव करना है DB पैरेलल टू BC। ओके, तो हमने सपोज किया कि DB लाइन नॉट पैरेलल टू BC, तो हमने B से एक लाइन ड्रॉ किया BM, जो AC को प्रोड्यूस करने के बाद M में मिलती है, तो BM इज पैरेलल टू D। ओके, सो बाय PPT इन ट्रायंगल ABM ये लाइन इसको पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू PPT AD अपॉन DB AB अपॉन EM इस तरह इक्वेशन मिल गई। फिर 1 एंड 2 से हमें ये पार्ट मिल गया और इससे EC इज इक्वल टू EM हो गया, EC इज इक्वल टू EM, तो EC इज इक्वल टू EM इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल कब होगा? इट इज नॉट पॉसिबल, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ओके, सो ये इट इज पॉसिबल कब होगा? जब M इज कॉन्साइड एट पॉइंट C। तो M पॉइंट कब C पर आएगा तो ये पॉसिबल हो सकता है। सो M अगर C पर आता है तो BC लाइन किसको पैरेलल हो गई? D को। तो
तो यही हमारा प्रूफ है. सो डी पैरेलल टू BC. सो दिस इज कन्वर्स DPT थ्योरम. थैंक यू.